Hello everyone, welcome to our channel EduTap Teaching Pariksha. So I think everybody is doing fine और सब लोग घर पे हैं और safe and sound हैं and healthy हैं especially because in the critical time I really advise that do not step out of your house until and unless it's really necessary, right? And जो essential चीज़ें भी हैं doorstep पे available हैं तो kindly उन services को use करें and अपना ख्याल रखें. All right, so as you know that EduTap is working from home and is trying its best to meet the expectation of our students, especially the ones who were earlier in the offline institutes and now they have no option to go out. So आपके लिए है ये specially YouTube series. It's completely free of cost. You just need the access of the internet and you have to just subscribe to our channel so that you are daily updated by the latest notifications. Clear? So, all right, I think everybody is pretty well. And you know that we are right now working on some special English series, जिसके हमने already 5 lectures कर लिए हैं. And today we are on the 6th. I would just like to let you know, जिन्होंने जो first time ये video देख रहे हैं, you can just subscribe and just watch the previous lectures which are covered. जो पिछले आपके 5 lectures हैं वो vocabulary पे थे and the major aim of this special English series is that we are covering a topic holistically, that is from end to end, especially to benefit the students who were earlier going to the institutes and right now they have no option. It is specially for them. And secondly, we are covering majorly the exam oriented concepts. Right. You know that exam-oriented concepts are highly important for the exam purpose, of course. तो वो हम इसीलिए इसी सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं. हम काफ़ी हद तक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने 5 लेक्चर्स किए हैं वोकैबुलरी पे and we have done various techniques of how you can deal with vocabulary and its related questions. So I recommend if somebody of you hasn't seen it till now, so you can just watch them before or after the session as per your convenience. Also, I would like to make a note that English sessions would be recorded only as soon as the lockdown will be lifted. We will switch to the live ones because of some technical issues at my place. Right, since we are all working from home and we really do not believe in stepping out because of such critical situations. So kindly adjust for certain times and obviously we're getting back to the comments and all your queries. So you can just let us know in case of any doubts and in fact you can mail us at hello@edutap.co.in. And that's it. I think we should start. So be attentive. And the topic that we're going to do today is spot the error. अब you know that spot the error जो आपका topic है that has been asked in the paper quite often. And ये जो basically topic है, topic नहीं कहूँगी, it is a type of a question, right? तो ये जो question type है ये आपका एक तरीके से summary है. समरी किस चीज़ का? जो सारे आपने टॉपिक्स पढ़े हैं ग्रामर में, लेट्स से आर्टिकल्स, लेट्स से वोकैबुलरी, लेट्स से टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देन पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एटसेट्रा. तो उन सारे टॉपिक्स में से आपको कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है जिसमें से आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है. क्लियर? तो अब lately I have been asked a question by one of among the students, like one of among you. The student asked me that ma'am, spot the error और subject verb agreement एक ही है. So guys, let me make it very clear here कि spot the error एक type है question की. It is a question type, जैसे कि fill-ups होती है, जैसे कि multiple choice questions होते हैं, तो ये उसकी एक type है, right? तो इसके और जो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, टेंसेस हो गया, ये आपके टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े हैं ग्रामर में. तो आई थिंक दैट विल सफाइस. इससे आपको काफ़ी लूसिड अंडरस्टैंडिंग हो गई है. इसमें बेसिकली होता ये है कि दैट यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड आउट ऑफ दैट देयर विल बी सम पार्ट विच इज एरेन्युअस, मतलब वो पार्ट होगा जो थोड़ा सा गलत है, राइट? तो जो वो गलत वाला पार्ट है आपको उसको बताना है कि कौन सा गलत है. दैट्स इट. पेपर में सिर्फ आपको इतना ही बताना होता है कि गलत कौन सा है.
यू डू नॉट हैव टू रेक्टिफाई इट कि इसकी जगह क्या आना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इसकी जगह क्या आना चाहिए. दैट विल बी द डबल कॉन्फर्मेशन ऑफ द आंसर, कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो मैंने मार्क किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी जगह ये आना चाहिए था. क्लियर. बट कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, बट ये नहीं पता कि इसकी जगह क्या आएगा. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. डू नॉट स्ट्रेस ओवर दैट फैक्ट, बट ट्राई टू नो दैट व्हाट विल बी द रेक्टिफाइड वर्जन ऑफ द एरर. क्लियर. तो चलिए फिर अब फटाफट से अटेंटिव हो जाए, एकदम अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए. इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा. वी वुड प्रैक्टिस अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस इन वन वीडियो, एंड आने वाले कुछ लेक्चर्स हम इसी टॉपिक पे बेस्ड रखेंगे, सो दैट इट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो हम करना चाहते हैं एक टॉपिक की, कि ऐसा ना हो कि हमने टॉपिक तो 10 शुरू किए हुए हैं लेकिन ख़त्म एक भी नहीं किया. सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग. Clear. So we are trying to actually ease the preparation method by doing this kind of series. Clear. All right, so let us start with the questions now, and let's see that how spot the error kind of questions go about. All right, people, so there will be a question on your left hand side, like it's my left hand side, right? And on the right side I would be explaining you with the answer and the explanation. क्लियर. तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ पहले, और फिर आई विल लेट यू नो कि इसमें क्या गलती है और ये गलती क्यों है, और उसका सही वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए. सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू रीड इट. ही आस्क्ड हर दैट whether she knew what had happened last week when she was on leave. एक बारी पढ़ने पे कहीं पर हमें नहीं पता लगता है तो कोई मतलब इश्यूज नहीं है, आप दोबारा भी पढ़ सकते हो उस क्वेश्चन को. ठीक है. अब देखिए इसका जो पार्ट ए है दैट इज योर आंसर. ठीक है, आंसर इज पार्ट ए. वाई? बिकॉज यहाँ पर ध्यान से देखिए, ही आस्क्ड हर दैट. प्लीज नोट, ये आप अभी नोट कर लें ये वाला रूल भी, कि जो आपका दैट है वो यहाँ पे नहीं आएगा. दैट हैज़ टू बी डिलीटेड फ्रॉम हेयर. कि यहाँ पर दैट हम क्यों डिलीट कर रहे हैं, बिकॉज जब भी ये आस्क्ड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके जस्ट आफ्टर दैट यूज नहीं होता. क्लियर. दैट इज नॉट यूज आफ्टर आस्क्ड लाइक इन सच सेंटेंसेस. ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी करेक्ट स्टेटमेंट. ही आस्क्ड हर वेदर शी न्यू what had happened last week when she was on leave. तो क्लियर है, आपको पता भी लग गया होगा कि हमने जब करेक्ट वाली स्टेटमेंट को बोलकर देखा है तो दैट इज मोर अपीलिंग ऑल्सो, मतलब वो ज़्यादा सही लग रही है. तो चलो ऐसे तो नहीं करना है एग्जाम में कि ये ज़्यादा सही लग रही है, बट कई बार एलिमिनेशन से या तुक्के से भी आंसर सही हो जाता है. नॉट ऑलवेज, बट इट इज़ द टाइम जब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो. अब जैसे आप इसमें नो एरर भी कर सकते थे अगर आपको ये दैट वाला ख्याल ना आया होता, बट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे दैट आपका जो है नहीं आएगा. इट विल नॉट बी यूज, तो यू विल हैव टू डिलीट दिस. क्लियर. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्या है. Until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. हाँ जी. अब देखो कितना ज़्यादा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सुपरफ्लुअस है. यहाँ पे क्या लिखा है, until you do not. अब यहाँ पे until का भी यूज़ कर लिया और do not का भी यूज़ कर लिया, तो वो स्टेटमेंट को सुपरफ्लुअस बना रहा है. ठीक है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सुपरफ्लुअस, तो इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सुपरफ्लुअस का होता है मतलब कि एक स्टेटमेंट में मतलब वो एग्जैजरेट कर रहा है उसी पॉइंट को, मतलब एक ही बात दो बार लिखी हुई है. अब देखो डू नॉट के साथ अंटिल कैसे लग सकता है, वो कह रहे हैं कि जब तक तुम स्टेशन पे नहीं जाओगे, तो अंटिल का मतलब इटसेल्फ इज डू नॉट, मतलब कहीं ना कहीं, तो इसलिए डू नॉट नहीं आएगा. स्टेटमेंट वुड बी until you go to the station to receive him I can hardly feel at ease. right, कि जब तक, तो फिर do not का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे. so that is why answer is option number A. you have to delete do not, because do not जो है यहाँ पे until के साथ आपका यूज नहीं होगा, because it is making the statement erroneous and superfluous. right. okay, so I think it is quite clear. समझ में भी आ रहा है आपको. okay जी, चलिए फिर. Question number 3. I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon. अब देखिए यहाँ पे why had they left so soon.
यहाँ पर आपका जो सी पार्ट में है सेंटेंस कि वाई हैड दे लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें वर्ब इन्होंने पहले लिख दिया यहाँ पे, ये ठीक है, सपोर्टिंग वर्ब इन्होंने पहले लिख दिया, तो इसीलिए ये आपका जो है इनवर्स स्टेटमेंट बना रहा है, इसलिए यहाँ पे वाई हैड दे की जगह क्या आएगा, वाई दे हैड लेफ्ट सो सून। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई डिड नॉट नो वेदर दे वर गोइंग नॉर कुड आई अंडरस्टैंड। अब बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई दे हैड लेफ्ट सो सून। क्लियर? वाई हैड से ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था फिर तो यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की फॉर्म में हो गया ना फिर, बट क्वेश्चन मार्क भी नहीं है इधर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा जी, वाई दे हैड। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, राइट? ओके, तो जल्दी से आपको समझ तो आ ही रहा है, एंड आई एम श्योर द वीडियो इज गोइंग टू बेनिफिशियल टू यू। फटाफट से लाइक कर दें वीडियो को, सो दैट हमें भी पता लगे कि आप इस तरीके की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं, या हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज आई वॉन्ट कि हमारी पूरी टीम यही चाहती है कि इस टाइम जो जो भी घर पे है सबको बेनिफिट हो, जो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। क्लियर? राइट, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये आपको ऐसा लग रहा है कि देख के कितना बड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, बट डू नॉट बॉदर, लाइक ओके, आंसर इसका इजी होगा, तो आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। The distinguished visitor said that he had great pleasure to be with us for some time, and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as ours. अब देखो यहाँ पे पार्ट नंबर सी में ऑफ सच एमिनेंस एज आर्स लिखा है, एज आर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जी, ऑफ सच एमिनेंस एज दैट ऑफ आर्स। यहाँ पे आपको दैट ऑफ आर्स करना है कि मतलब हमारी जैसी, ठीक है, तो उसको हम और जस्टिफाई कर रहे हैं एज दैट ऑफ आर्स, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फिर, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर टू बी विद अस for some time, and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institution of such eminence as that of ours. यहाँ से हमने ऐड कर लिया as that of ours. Clear? तो clearly answer is option number C. All right. Next question क्या है? प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स। देखो बोलते नहीं है कि हाँ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स या कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, तो ये बैक टू योर पेरेंट्स क्या है कि मतलब वापस, बैक का कुछ सेंस नहीं है यहाँ पे, इट इज मेकिंग द स्टेटमेंट रॉन्ग। सो अगेन द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बैक नहीं आएगा, इट विल बी डायरेक्टली लाइक प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, राइट? तो बैक जो है यहाँ पे ये रॉन्गली यूज्ड है, which is in option number C. So that is why your answer is option C. Clear? Okay. Okay, so question number 6. The call of the seas have always found an echo in me. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है the call of the seas have always found an echo in me. So now this is the question of subject verb agreement. तो यहाँ पे जो आपका कॉल ऑफ द सीज है, राइट, तो उसके साथ हैव नहीं आ सकता, ठीक है। आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, राइट? तो दैट इज वाई यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जी आपका हैज। तो आंसर क्या होगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज करेक्ट, राइट? तो आंसर है जी इसका बी, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, द कॉल ऑफ द सीज has always found an echo in me. Clear? Okay. Question number 7. Hardly I had left home for Mumbai when my son, who was settled in Kolkata, arrived without any prior information. अब देखिए जरा यहाँ पे hardly I had left home for Mumbai, यहाँ पे
आपको पता लग जाना चाहिए बोलते हुए कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही है जी, आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है, दैट इज ए। और यहाँ पर हार्डली आई हैड लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हार्डली हैड आई लेफ्ट। ये इनवर्स स्टेटमेंट बना रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा जी, हार्डली हैड आई लेफ्ट फ्रॉम मुंबई when my son who is settled in Kolkata arrived without any prior information. So your answer is option number A. Clear? समझ में आ रहा है अच्छे से? आना भी चाहिए बिकॉज इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, बट इस तरीके के ही होते हैं जो एग्जाम के अंदर भी आपके आते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट? लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी क्या है। नाउ इट कैन बी easily said that the population of the city is greater than any other city in India. अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था पहले, अगर आपने ध्यान से सुना हो। सो अब आप यहाँ पे सी ऑप्शन में देखेंगे, दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्लियरली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे दैन के साथ क्या लगेगा, दैन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, नाउ इट कैन बी इजिली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज ग्रेटर दैन that of any other city in India. So that is answer is option number C, right? Okay. It is difficult to explain why did Raja Gopalachari resigned from the Congress in 1940. हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, सोचिए, बिना आंसर देखे एक बार ही सोचें कि स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन why did Raja Gopalachari resigned from the Congress in 1940. जिनके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे है जी did, तो did के साथ हमेशा क्या लगती है, verb की फर्स्ट फॉर्म, राइट? यही है, did के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो verb की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वहां पे यहाँ पे फिर ed नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, रिजाइन आएगा। बिल्कुल सही। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। It is difficult to explain why did Raja Gopalachari resign from the Congress in 1940. So now it is making the statement completely correct and error free. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसी तरीके से जो हमारे रूल्स होते हैं ना, जो हमने पढ़े हैं ग्रामर में, लाइक बीट ऑन आर्टिकल्स और बीट ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बीट ऑन टेंसेस, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो सकता है, वॉइस दैट इज, और योर स्पीच दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कंजंक्शंस और मॉडल्स। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा है, एरर स्पॉटिंग एक उसी का एप्लीकेशन है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि भी डिटर्मिनस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमने करे हैं, और ये वर्ब फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ये मोर और लेस यू कैन सी कि इजी है मतलब करना, है ना, कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से इसको देख सकते हो और गलती निकाल सकते हो कि क्या है, राइट? ओके। Question number 10. The boss reminded them of the old saying that honesty was the best policy and told them that they had better be honest in their work. हाँ जी, अब देखिए क्या होगा जी इसका आंसर। The boss reminded them of the old saying that honesty was the best policy and told them that they had better be honest in their work. अगर अब आप बी ऑप्शन देखोगे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज की जगह इज। क्यों? कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वैसे तो ये पास्ट टेंस में है, यहाँ से रिमाइंडेड से हमें पता लग रहा है दैट द क्वेश्चन इज इन दी पास्ट टेंस, बिल्कुल सही। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। और अगर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट होती है तो उसमें जो टेंसेस है दैट डू नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो रिप्लेस वॉज बाय इज टू मेक दिस आंसर कंप्लीटली एरर फ्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको अब आप प्रैक्टिकली अगर इनको अप्लाई कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Gulliver's Travels are the most fascinating adventure story that I have ever read. Gulliver's Travels जब आई थिंक छोटे होते सबने देखी होगी या पढ़ी होगी. आई एम श्योर इसकी वो सीडी भी आती थी. हमें तो लाइब्रेरी में दिखाई जाती थी एट दैट टाइम इन माई स्कूल डेज. सो इफ़ यू हैव सीन इट, अगर नहीं देखी तो अभी देख लो, थोड़ा सा टाइम मिल गया अभी तो यू कैन वॉच इट. इट्स अ फनी एंड गुड वन. सो गुलिवर ट्रैवल्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग. अब यहाँ पे आर का यूजेज गलत है. आर की जगह क्या आएगा यहाँ पे? इज ही आएगा. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. सो इट इज गुलिवर्स ट्रैवल्स इज द मोस्ट फैसिनेटिंग बिकॉज ये एक मतलब इसका नाम ही ऐसा है. जो ये नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसा ही है. इसमें कुछ प्लूरल और सिंगुलर नहीं है. नाउन्स के अंदर ये आपने पढ़ा है कि सम थिंग्स do not have plurals or singulars. For example, mathematics. For example, politics. For example, economics. लेकिन still they are considered as a single unit. Right? S लगा हुआ है but तब भी वो single unit की तरह ही treat किए जाते हैं. तो ये similarly वैसा ही question है. तो इसलिए यहाँ पे R की जगह आपका क्या आ जाएगा जी? Is आ जाएगा. Right? And the last question of the day is, the teenager reassured his father at the station, "Don't worry, Dad, I will pull on very nicely at the hostel." अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली. पुल ऑन क्या होता है? मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपने आप को बेसिकली या तो कैरी करते हो या मैनेज करते हो. तो मतलब यहाँ पे पुल ऑन का यूजेज गलत है. यहाँ पे क्या आएगा जी? कैरी ऑन. कि मतलब मैं आराम से देख लूंगा, संभाल लूंगा चीजों को. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? The teenager reassured his father at the station, "Don't worry, Dad, I will carry on very nicely at the hostel." कि मतलब I will kind of carry myself and carry my things. उस सेंस में यूज किया गया है. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी. अब आप ये सोचो कि पुल ऑन का बेसिकली मतलब क्या होना चाहिए. जल्दी से सोचिए कि पुल ऑन जो है आपका, वेयर इज इट यूज्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग. सोचिए सोचिए. ओके, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि पुल ऑन का मतलब क्या होता है और वो कहाँ पे यूज होता है. ठीक है, बिकॉज अभी ऑब्वियसली मैं आप ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू राइट नाउ. तो पुल ऑन का मीनिंग जरूर सोचेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएंगे. राइट? ओके, चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड शॉर्ट था थोड़ा वीडियो बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर था अभी इस टॉपिक पे, तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट रहा. कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ें और फोकस रखें ज़रूर पढ़ाई पे, नो मैटर बाहर जो भी हो रहा है. स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स. हैव अ गुड क्वालिटी टाइम विद देम एंड डू स्टडी वेल. ऑलराइट? और अपना भी ख्याल रखें आप ज़रूर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.